Okay, so today's presentation is about endodontic radiography, which is a very important aspect of endodontics because without a radiograph, we cannot perform the endodontics correctly. ठीक है तो अगर आपसे कोई भी कहे कि जी मैं एक्सरे के बगैर रूट कनाल कर लेता हूँ तो प्लीज़ डोंट बिलीव हिम. ठीक है, अगर वो करता है तो वो बिल्कुल गलत करता है. ओके, सो this presentation will be divided into two parts. In endodontic radiography, we will learn about different types of radiographs with emphasis to endodontics. And we will learn about different techniques by which we can perform radiograph. Then there's a portion in which I will show you the radiograph and I'll ask you to interpret that radiograph. Because for interpretation you should know the normal structures also, not only the pathologies. So let's move forward, and my first question would be that what is the importance of radiography? Why do we need to perform a radiograph of a tooth? G, batch D particularly, please participate and tell me. सर सर टूथ की एनाटमी देखने के लिए और Sir, रूट्स की एनाटमी देखने के लिए. sir, to see if there are any periapical pathologies, you have to see the proximity of the vital structures. Okay, okay, very कोई nice. एनोमली है तो एनोमली चेक करने के लिए भी. ठीक है, identifying the Treatment plan pathology, anatomy, as you guys have mentioned, and as well as to characterize the normal structures, because if we know the normal structures, then only then will we be able to identify the abnormalities which would be present in an x-ray. So this is the importance of the radiograph. Now let me tell you that whenever a patient visits a dental clinic and you clinically examine that patient, so it is not possible to examine everything. Like a part of just a crown is visible in the mouth. So those structures which are not visible clinically are visible radiographically. Okay, so that's why we, as the name itself suggests, just in case of periapical X-ray, periapical means around the root. So those areas which are present around the root or around the apex, those structures are only visible by a radiograph. We cannot clinically examine those areas. That's why whenever we want to make a diagnosis of a particular patient, we have to perform clinical examination as well as the radiographic examination. इन दोनों को की examinations के बाद हम अपनी diagnosis पे पहुंचते हैं. Okay, so now moving to the different types and the evolution of radiographs over the years. So as you can see in this picture, what can you see? Tell me, ये क्या आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें? What is this? Sir, your X-ray machine for the periapical radiograph. So, No, specifically, what is this? When we say Sir, X-ray wall machine, mount radiograph. there, yes, very nice. This is the wall-mounted X-ray source. Okay, that's what I was trying to ask. That now, the X-ray source, the source from where the X-rays are coming, it can either be wall-mounted, as I have shown you in this picture, or it can be portable, which is available in our department. So if we want to classify the X-ray source, this one is wall mounted, this one is portable. Now coming to the sensors. Now look at this. This is the X-ray sensor which is placed inside the patient's mouth, and as you can see it is connected to a wire, and this wire is then connected to a computer. So we use this type of X-ray sensor in digital radiographs. ठीक है, digital radiographs में हम ये वाला X-ray sensor use करते हैं because it is connected to the computer. जब हम X-ray लेते हैं with the help of X-ray source और जब हम इस X-ray sensor को हम place करते हैं inside the mouth, तो जो भी हमारा X-ray होता है वो direct computer में visible हो जाता है because this X-ray sensor is connected to the computer. ठीक है. So this is the digital X-ray sensor. Now it can either be digital as I have shown you in this picture,
or it can be a film based. Now as you might have noticed that previously whenever we want to take a photograph, तो हम लोग जो हमारे कैमराज में एक रील हुआ करती थी, तो हम उसको उस रील को दिया करते थे शॉप में और उसको कहते थे इसको डेवलप करने, यानी जो नेगेटिव्स आते थे तस्वीरों के उसको डेवलप करते थे विद द हेल्प ऑफ डेवलपर। तो ये भी वही चीज़ है कि हम इस फिल्म से एक्सरे लेते हैं, इस फिल्म के एक्सरे को विच इज़ अ नेगेटिव, इसको हम डेवलप करते हैं और हमें फिर ये एक मिल जाता है। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर अप टिल नाउ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी किस्म की? एक मैंने आपको डिजिटल के बारे में बताया, एक मैंने आपको फिल्म बेस्ड के बारे में बताया। इज देयर एनी क्वेश्चन? No, sir. नो सर। No, sir. Now let me show you a third type, photostimulable phosphor plate. This is the one which is available in our department. It is very efficient, easy to use, and it can, this type of sensor or more specifically we call this a plate, PSP plate. It can be directly placed into the PSP machine, which is, this is the PSP machine. On the right side you can see a PSP machine. That plate is placed into the PSP machine, and after that when the plate comes out, जो हमारा एक्सरे का रिजल्ट होता है वो कंप्यूटर पे विजिबल हो जाता है. Now what happens that when we place this PSP plate inside the patient's mouth and we perform an X-ray with an X-ray source, what happens, the charges accumulate on this PSP plate. ठीक है, अब जब चार्जेस इस पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं या ये प्लेट वी कैन से इट इज चार्ज्ड, तो हम उसको प्लेस करते हैं इस पीएसपी मशीन में. व्हेन वी प्लेस दिस पीएसपी प्लेट इन दी पीएसपी मशीन और पीएसपी रीडर, what happens that inside this PSP machine there is a magnet. Now that magnet attracts those charges. Once the charge, all the charges have been removed from the film comes out from here, this area. ठीक है, और जो हमारे चार्जेस मैग्नेट ने लिए थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एन एक्सरे इमेज. आप लोगों को ये समझ आ गई ये चीज़ मैंने क्या बताया? एक प्लेट में चार्जेस आए, वो चार्ज हो गई, उसको हमने पीएसपी रीडर में प्लेस किया, पीएसपी रीडर ने उन चार्जेस को कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट और वो फिर प्लेट बाहर आ गई, विच शोज दैट दिस प्लेट कैन बी रीयूज्ड. ठीक है, जब वो चार्जेस ले लिए उस पीएसपी मशीन ने तो उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू एन एक्सरे इमेज. सो इन दिस केस वी डू नॉट रिक्वायर एनी डेवलपर. हमने डायरेक्टली एक प्लेट को चार्ज किया, जब हमने एक्सरे करते वक्त एक्सरे किया तो वो चार्ज हो गई, उसको हमने पीएसपी प्लेट मशीन के अंदर डाला पीएसपी प्लेट को, और हमारे पास डायरेक्टली कंप्यूटर में एक्सरे आ गया. और एंड वन मोर थिंग दैट इफ वी कंपेयर दिस पीएसपी प्लेट विद दिस डिजिटल एक्सरे, तो डिजिटल एक्सरे सेंसर, तो इसमें कोई वायर नहीं है इस वाले, इसमें वायर था, इसमें नहीं है. वैसे तो ये वाला भी वायरलेस है बिकॉज, लेकिन ये हम डेवलप कर रहे हैं, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और इसका रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं होता इफ़ वी कंपेयर दिस. सो इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ एक्सरेज प्लीज आस्क. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. सर ये जो आप अभी डिफरेंस बता रहे थे, जरा दोबारा बता देंगे? क्या चीज़ पूछना जो चाह वायर रहे वाला बता रहे थे हैं? जी, सर, ये जो वायर वाला आप डिफरेंस बता रहे थे. जी, दिस इज द एक्सरे सेंसर. ठीक है, ये जो है ना इट इज कनेक्टेड टू अ वायर, और ये आप देखें इस वायर के एंड पे एक यूएसबी टाइप पोर्ट ये है इसका वायर, जो कि कंप्यूटर में इजीली प्लेस हो जाता है यूएसबी पोर्ट में. ठीक है, तो हम करते ये हैं कि इस जो ये ग्रीन एरिया है ना, ये विच इज़ द एक्सरे सेंसर, वी प्लेस इट इन द पेशेंट्स माउथ. ठीक है, और उसके बाद हम एक्सरे लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे सोर्स. ये एक्सरे सोर्स है, कैन बी आइदर पोर्टेबल और वॉल माउंटेड. ठीक है, जब हम एक्सरे ले लेते हैं तो डायरेक्टली कंप्यूटर में हमारे पास एक्सरे आ जाता है. क्यों? क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ वायर. नाउ इफ़ वी कम टू दीज वायरलेस फिल्म्स या फिर हम प्लेट्स में जब हम आते हैं, तो इसमें क्या होता है, इस वाले में हमें जो फिल्म बेस्ड होते हैं इसमें हमें डेवलप करना पड़ता है. केमिकल होता है विच इज़ फिल्म डेवलपर जैसे कहते हैं, उसके अंदर हम डेवलप करते हैं उसको, फिर हमें रिजल्ट मिलता है. और अगर हम इसको देखें तो ये प्लेट जो होती है ये हम डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं मशीन के अंदर,
और हमें फिर उसके बाद एक्सरे मिलता है कंप्यूटर। तो ये था वायरलेस में और वायर्ड वाले सेंसर में फ़र्क। ठीक है, जी सर। now in order to place a film or a plate into the patient's mouth and to avoid any sort of movement or distortion, हम ये चाहें कि हमारा एक्सरे फिल्म मूव भी ना करे, प्रॉपरली हम प्लेस कर दें और किसी किस्म का कोई डिस्टॉर्शन ना आए हमारे एक्सरे में, तो व्हाट वी यूज़ दीज फिल्म होल्डर्स। ठीक है, एक्सरे फिल्म होल्डर्स। इसमें क्या होता है कि दिस एरिया, दिस येलो पोर्शन की जो, इसमें हम एक्सरे फिल्म को या एक्सरे प्लेट को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद वी प्लेस इट इन द पेशेंट्स माउथ। उससे क्या होता है कि हमें अब एक रेफरेंस मिल गया कि हाँ हमारा एक्सरे प्लेस हो गया है। और इस जो हम ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन है ना, यहाँ पे हम एक्सरे सोर्स रखते हैं और फिर हम एक्सरे लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दिस दिस पार्ट इज द इंट्रा ओरल, दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा ओरल। ठीक है, इंट्रा ओरल पार्ट में फिल्म फिक्स करके हमने प्लेस कर दी और एक्स्ट्रा ओरल पार्ट विच एक्ट्स एज अ रेफरेंस, वहाँ पे हमने अपनी एक्सरे सोर्स प्लेस की। ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे हमने अपनी एक्सरे सोर्स प्लेस की और फिर हमने एक्सरे लिया। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, इसको पोजीशन इमेजिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, टू पोजीशन दी एक्सरे फिल्म्स, पोजीशन इमेजिंग डिवाइसेस, PIDs. Now coming to the broad classification of types of x-rays which we are using in dentistry. The intraoral x-rays can be broadly classified into two types, and it can either be performed with a paralleling technique or bisecting angle technique. Yani, if we talk about a periapical x-ray, which is mostly used in endodontics, now we can perform this periapical x-ray with either the paralleling technique or the bisecting angle technique. Now in the clinical viva, a question was asked from some students that which type of technique do we adapt in endodontics. So the answer is paralleling technique. Why, I will tell you in the upcoming slides. So periapical X-ray or periapical radiograph can be performed by either a paralleling technique or the bisecting angle technique. Another one is bite wing. As you all know, what is the indication of bite wing X-rays? ये तो सबको पता होगा जी। क्लास 2 कैरीज। क्लास 2 केरीज और प्रॉक्सिमल केरीज को विजुअलाइज करने के लिए हम बाइट विंग एक्सरे यूज करते हैं। Okay, as I have mentioned, two types of techniques, the paralleling technique and the bisecting angle technique. Now we will go into the detail of these two techniques. As the name itself suggests, paralleling technique means something which is placed parallel to the tooth surface. So in this, we place the X-ray film parallel to the long axis of the tooth. Now look at this. This is the tooth, and this line suggests the long axis of the tooth. The line which is passing through this tooth is along the long axis of the tooth. Now we place the X-ray film parallel to the tooth or parallel to the long axis of the tooth. Got it? The X-ray film is parallel to the long axis of the tooth, and the X-rays which are coming from the X-ray tube or X-ray source are perpendicular to the long axis of the tooth and the long axis of the film. As you can see, the film and the tooth are parallel to each other, but the X-ray beam which is coming from the X-ray source, it is perpendicular to the long axis of the tooth. Perpendicular means it is making a 90-degree angle with the long axis of the tooth as well as with the long axis of the film. ठीक है, ये पैरेललिंग टेक्निक आपको समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so what are the advantages
So whenever we use this technique, there's minimal dimensional distortion, यानी हमें एक्सरे इमेज मोस्टली बहुत अच्छा मिल जाता है, एंड इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल, यानी हम इस तरीके से बार बार एक्सरे कर सकते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी एंडोडोंटिक्स में हम कौन सी टेक्निक मोस्टली फॉलो करते हैं, तो आपने बताना है वी परफॉर्म पैरेललिंग टेक्निक, we take a periapical radiograph with the paralleling technique because it is easy to perform this technique. It is reproducible and it gives a distortion free image. Now as there are advantages, there are also disadvantages. Disadvantage is because if a patient presents to you in a dental clinic with a limited mouth opening, so sometimes it is not possible to place the X-ray film along the long axis of the tooth, क्योंकि पेशेंट के मुंह के अंदर इतनी स्पेस ही नहीं होती कि हम उस एक्सरे फिल्म को अलॉन्ग दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ प्लेस करें। तो फिर उसके लिए हमें कोई और टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। इन सम पेशेंट्स दे हैव स्मॉल माउथ्स एंड शैलो पैलेट, ठीक है, वहाँ भी हम ये पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं होती। And another disadvantage is that whenever we try to perform paralleling technique and if we do not perform it correctly, we might bend the film, और अगर हम अपनी फिल्म को बेंड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा इमेज जो है ना, इमेज क्वालिटी भी डिस्टॉर्ट होगी और हमारे एक्सरे इमेज में एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ disadvantages of paralleling technique. Tissue impingement, टिश्यू इम्पिंजमेंट ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, शैलो पैलेट में नहीं पॉसिबल होता और बैंड भी हो सकती है फिर। ओके, नाउ कमिंग टू द बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक। Bisecting angle technique, as the name itself suggests, it suggests something which is bisecting. Now let me show you that in bisecting angle technique what happens, that look at this is the tooth, this line suggests the long axis of the tooth, ठीक है। This is the film, this red line, it suggests the long axis of the film, all right। Black line suggests the long axis of the tooth, the red line suggests the long axis of the film. Now look at this black line, the line which is bisecting the long axis of the tooth as well as the long axis of the film, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी बाइसेक्टिंग लाइन के पैरेलल रखना है अपनी एक्सरे सोर्स को, ठीक है। मतलब इसमें होगा ये कि जब हम बाइसेक्टिंग लाइन को इमेजिन करेंगे, जैसे ये आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है और इसको क्लिनिकली करने के लिए भी हमें एक टेक्निक करनी पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा। बाइसेक्टिंग लाइन क्या जा रही है, बाइसेक्टिंग लाइन इज मूविंग between the long axis of the tooth as well as the long axis of the film, and the X-ray beam which is coming from the X-ray source, ठीक है, ये क्या है, it is perpendicular to this bisecting line, यानी it is making a 90 degree angle with the bisecting line, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि some students ask कि सर पता किस तरह चलेगा कि जी हमने अपनी फिल्म को किस एंगल पे रखना है। रफली मैं आपको बता देता हूँ, 25 to 30 डिग्री के हम एंगल पे रखते हैं अपनी फिल्म को, ठीक है, और बाइसेक्टिंग लाइन के हम परपेंडिकुलर रखते हैं अपनी एक्सरे ट्यूब को। अच्छा, अब हम हाउ डू वी इंश्योर कि हमने अपनी एक्सरे फिल्म को 25 to 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। उसका तरीका ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यूज़ करते हैं पोजीशन इमेजिंग डिवाइसेस। पोजीशन इमेजिंग डिवाइसेस से ये होगा कि हम एक एंगल सेट कर लेंगे फिल्म का, कि हमने लेट सपोज हमने एक पेशेंट का एक्सरे लिया है 25 डिग्री पे, यानी हमने अपनी फिल्म को प्लेस किया है एट अ 25 डिग्री या 30 डिग्री या 35 डिग्री पे। तो हम अपनी फिल्म को प्लेस करेंगे 35 डिग्री पे
with the help of position imaging devices और एक्सरे फिल्म होल्डर। जब हम उस एंगल को सेट कर लेंगे तो फिर हम अपनी बाइसेक्टिंग लाइन के परपेंडिकुलर जो है हम एक्सरे लेंगे, तो फिर हमें वो एक्सरे इमेज अचीव होगा। ठीक है, सो दिस थिंग, ये आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा कि एक बाइसेक्टिंग लाइन होती है जो कि बीच से गुजर रही होती है फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ एंड फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिल्म, और इस बाइसेक्टिंग लाइन के परपेंडिकुलर हमारी एक्सरे सोर्स होती है और एक्सरे बीम भी उसके परपेंडिकुलर होती है, और इसके थ्रू जो हमें रेडियोग्राफ मिलता है वो हम कहते हैं कि वी हैव अचीव्ड दिस रेडियोग्राफ विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक। ये आप लोगों को समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? कोई है तो नो आप सर। पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फर्क क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक्सरे फिल्म को एट एन एंगल रखा, और पीछे हम क्या फर्क था कि हमने एक्सरे फिल्म को along the long axis of the tooth रखा या parallel to the long axis of the tooth रखा। Now there are certain advantages of bisecting angle technique. Number one is it is comfortable for the patient. There is minimal tissue impingement because we are placing the film at an angle। तो इसमें होता ही है कि टिश्यू इम्पिंजमेंट नहीं होती, क्योंकि जो लॉन्ग एक्स अगर हम लॉन्ग एक्सिस ऑफ द अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ को अगर हम फिल्म को रखेंगे और अगर पेशेंट का शैलो माउथ होगा या लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी, उससे क्या नुकसान होगा, ये टिश्यू इम्पिंजमेंट हो सकती है। अनदर एडवांटेज इज सेम लेंथ ऑफ टूथ इज फॉर्म्ड ऑन द रेडियोग्राफ, यानी जो लेंथ आपको रेडियोग्राफ में विजिबल होगी वही लेंथ आपकी ओरिजिनल होगी। तो ये जब क्वेश्चन क्लिनिकल क्विज में किसी स्टूडेंट से पूछता है तो उसने कहा कि वी यूज बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक्स इन एंडोडोंटिक्स because we achieve the same length of the tooth। let me correct that student के ठीक है same length of tooth हमें मिल रही है, but in order to determine the length or the working length of the tooth or the working length of a root, we cannot rely entirely on the x-ray। ठीक है, we have other options as well like apex locator, tactile sensation। ठीक है, बहुत टेक्निक्स होती हैं वर्किंग लेंथ डिटरमिन करने की। सो हम एक 2 डायमेंशनल इमेज पे कभी भी इंटायरली डिपेंड नहीं करेंगे एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्रोड्यूस दिस एक्सरे। ठीक है, बार बार हम उस एंगुलेशन से नहीं लेंगे, क्योंकि जब भी हमने एंडोडोंटिक्स करनी है तो हमें बार बार उस एंगल से लेना पड़ेगा एक्सरे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, सो whenever you are performing endodontics or root canal of a patient, please use paralleling technique। ठीक है, बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक जो है वो हम फॉलो अप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमने एक एक्सरे कर लिया बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक से और हमने 3 महीने बाद पेशेंट आया तो दोबारा उसी टेक्निक से उसी एंगुलेशन से कर लिया। सर अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा वो टिश्यू इम्पिंजमेंट हो रही है तो फिर भी हम पैरेललिंग वो टेक्निक यूज करेंगे। देखिए वही एक्सेप्शन आ गई ना, फिर अगर तो पेशेंट की लिमिटेड माउथ ओपनिंग है, स्पेस ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हमें अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। या फिर अनदर ऑप्शन इज वी कैन यूज पीडोडोंटिक फिल्म। आप लोगों को शायद मैंने यहाँ बताया था, ये देखें, ये प्लेट्स जो है ना ये एडल्ट साइज में भी आती हैं और चाइल्ड के लिए स्मॉल साइज में भी आती हैं। हम लोग स्मॉल साइज में, व्हाट आई डू पर्सनली, आई यूज दीज फिल्म्स if there is limited mouth opening or if there is less space। ठीक है, ओके सो बस ये एक स्लॉब रूल कर लेते हैं 5 मिनट्स में, उसके बाद वी विल बी डन विद आवर पार्ट 1 ऑफ एंडोडोंटिक रेडियोग्राफी। नाउ लुक एट दिस दीज 2 रेडियोग्राफ्स। ठीक है, आप लोग मुझे ये बताएं बैच डी स्टूडेंट्स खास तौर पे, इन दोनों ये सेम टूथ के हैं रेडियोग्राफ। ठीक है, फर्क क्या आ रहा है दोनों में, क्या डिफरेंस फील हो रहा है? स्लॉब रूल यूज किया हुआ है जी लेफ्ट वाले स्लॉब रूल राइट वाले सुपर इम्पोज्ड हुई हुई है, तो स्लॉब रूल से फिर वो सारी डिटरमिन हो रही है कैनाल से। ठीक हो गया। अच्छा, होता ये है कि जब भी हम पेरीएपिकल एक्सरे लेते हैं, सो प्लीज बेयर इन माइंड दैट पेरीएपिकल एक्सरे इज अ
2-dimensional image of a 3-dimensional structure। यानी 2D इमेज है, वो 3D इमेज नहीं है, हमें कुछ चीज़ें उसमें नज़र आएंगी, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अब इसमें हो ये रहा है कि इस हमने एक लोअर मोलर है एक, ठीक है, इसमें हम अगर देखें ना, हमने एक एक्सरे लिया तो हमें सिर्फ 2 कैनाल्स विजिबल हैं, एक मीजियल साइड पे या एक डिस्टल साइड, ठीक है। लेकिन जब हमने थोड़ी सी एंगुलेशन चेंज की तो पता चला कि नो, देयर आर एक्चुअली 4 कैनाल्स विच आर ऑब्चुरेटेड, ठीक है। सो इसमें होता ही है कि समटाइम्स ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन, यानी जब कोई कैनाल्स आपस में सुपर इम्पोज कर लें तो हमें सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैनाल्स नज़र आते हैं, हमें क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती। इसलिए वेन एवर यू परफॉर्म एन एक्सरे, जब भी आप एंडोडोंटिक्स कर रहे हैं, try performing it with different shifts. Now what do we mean by shift? We can either shift our X-ray source towards the mesial side, or we can either shift our X-ray source towards the distal side, ठीक है। जब भी हम अपनी एक्सरे सोर्स को मीजियल साइड पे या डिस्टल साइड में मूव करेंगे तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, वो होता है स्लॉब रूल। अकॉर्डिंग टू द स्लॉब रूल उसमें ये होता है कि सेम लिंगुअल ऑपोजिट बकल, यानी अगर हमने अपने एक्सरे सोर्स को मीजियली मूव किया है तो हमारा लिंगुअल कैनाल मीजियली मूव कर जाएगा, ठीक है, और हमारा जो बकल कैनाल है वो हमारा मूव कर जाएगा डिस्टली, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसकी मज़ीद डिटेल के लिए इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो, ठीक है, इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। और आपने याद यही रखना है कि स्लॉब मीन्स सेम लिंगुअल ऑपोजिट बकल, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड you can leave now. Thank you.